Good morning, dear students. As you know that your Act 1 and Scene 1 explanation has been finished and you have been already given the answers of extracts 1 to 7. I hope that you have completed the work in your notebooks, and now today onwards I will be explaining the Act 1 and Scene 2 of Merchant of Venice. So be ready and the scene starts now. First of all, you watch the video, or you start to watch the video. You read the summary that has been given prior to the video, and in the beginning of the scene, Portia is very sad and restless because of her father's will. She is sad because she is not free to marry a person of her own choice. So Portia and Nerissa are talking, and in this scene you will come to know that Nerissa is not a maid, is not only a maid but a very good companion and advisor of Portia. So Portia shares his feelings and says, by my troth, Nerissa, my little body is aweary of this great world. What does she say? By my troth means in reality, or by my faith, Nerissa, my little body is aweary of this great world. It means she wants to say that had of I have had enough of this world. She says, now I am tired of this world. कि इस दुनिया से बिल्कुल मेरा मन हट गया है. She wants to say this. And Nerissa says, you would be sweet, madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. And Nerissa says, madam, you would be aweary of this great world. She says, madam, you must feel tired of this great world when your miseries were in the same abundance. यानी मिजरीज हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो भी उतनी abundance में हो, उतनी amount में हो जितनी तुम्हारी किस्मत भी है, जितने फॉर्चून्स तुम्हारे अच्छे हैं. कहने का मतलब, इंसान के पास जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, जितना ज़्यादा रुपया पैसा होता है, उसकी परेशानियां भी कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा होती हैं. नरिसा ये कहना चाहती है. सो शी सेज कि मैडम, जितने आपके फॉर्च्यून्स अच्छे हैं, जितनी आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर उतनी परेशानियां भी हैं, तो आपका मन जरूर इस दुनिया से ऊब जाएगा. एंड येट फॉर ऑट आई सी, he says, ought I see? Ought means anything. She says, anything I can see. What does she see? She says, they are as sick that surfeit with too much. कहती वो लोग भी सिक होते हैं, यानी ऊब जाते हैं. सरफीट विथ टू मच, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है, अथाह पैसा होता है, अथाह प्रॉपर्टी होती है, वो भी उतने ज़्यादा ही सिक होते हैं, उतने ज़्यादा ही परेशान होते हैं जितना कि वो लोग जो कुछ ना होने की वजह से स्टार्व भी करते हैं, भूखे मर जाते हैं. यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, बहुत है, और एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं, खाने तक के लिए कुछ नहीं, वो स्टार्व करता है, भूखा मर जाता है. तो वो लोग भी उतने ही परेशान रहते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, रुपया पैसा होता है. और इस तरह वो पोर्शिया से कहती है कि आप इसी वजह से परेशान हैं. क्यों कहती है ऐसा? नैरिसा सेज, बिकॉज पोर्शिया इज अ रिच heiress. शी हैज़ बीन लेफ्ट विद अ great property by her father, but Portia is rich, she is beautiful, but she is not the master of her own will. उसे अपनी मर्जी नहीं है, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकती अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में, इसलिए वो परेशान है.
It is therefore, it is no mean happiness. She says it is no mean happiness. Mean means small happiness. Small happiness. Therefore, to be seated in the mean. To be seated in the mean, there are two words, mean and mean. This mean means small, and this mean means middle. She says कि हैप्पीनेस तभी, वो भी हैप्पीनेस स्मॉल नहीं है जो बिल्कुल मिडिल में हो, ना ही बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ना बहुत ज़्यादा अमीर हो कोई और ना ज़्यादा बहुत गरीब हो। बिल्कुल एक मिडिल सिचुएशन में जो इंसान रहता है वही हैप्पी रहता है। She says superfluity comes sooner by white hairs. Superfluity means richness, अनलिमिटेड रिचनेस कम सूनर बाय वाइट हेयर, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो जल्दी ही कैसे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। कहने का मतलब उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती है। बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। कॉम्पिटेंसी मीन्स इनफ, जिनके पास पर्याप्त होता है, ना ज़्यादा ना कम, जितना उनको जीने के लिए चाहिए उतना ही होता है, वो लॉन्गर जीते हैं, यानी उनकी लाइफ लंबी होती है। और जिनके पास बहुत ही ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है, तो उसको संभालने में इतना बिजी रहते हैं कि उनकी एज कम होने लगती है। इन शॉर्ट, नैरिसा वॉन्ट्स टू से दैट यू मस्ट नॉट हैव अ लार्ज अमाउंट दैन नीडेड। जितना ज़रूरत है बस उतना होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। दैन पोर्शिया सेज गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड। पोर्शिया सेज वेरी गुड सेंटेंसेस, यानी कहती बहुत अच्छी बात कही आपने, वेल प्रोनाउंस्ड ऑन, और आपने बहुत अच्छी तरह से कहा भी, यानी ये बात है एकदम सच है, और नैरिसा ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। एंड व्हेन पोर्शिया सेज वेरी गुड सेंटेंसेस देन नैरिसा सेज दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड। कहती है सेंटेंस तो अच्छे हैं लेकिन बेटर तब होंगे जब आप उन्हें फॉलो करेंगी, इस बात को फॉलो करेंगी। फिर पोर्शिया क्या कहती है, अरे फॉलो करना इतना आसान होता तो हर कोई इंसान आज क्या नहीं होता। कहती है कि सलाह देना बहुत आसान है लेकिन उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है। पोर्शिया सेज इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू। इफ टू डू वर एज इजी, करना इतना आसान होता जितना कि जानना कि करना क्या है। यानी लोग जान लेते कि हाँ ये काम अच्छा है, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। अगर लोग जो कहते वही करते तो क्या होता। चैपल्स हैड बीन चर्चेज। चैपल्स हैं जो स्मॉल चर्चेज हैं वो बड़े चर्चेज में बदल जाते। पुअर मेंस कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस, एंड पुअर मेंस कॉटेजेस विल बी चेंज इनटू द प्रिंसेस पैलेसेस। यानी गरीब आदमियों की झोपड़ियाँ बड़े बड़े महलों में चेंज हो जाती। गरीब आदमी सोचता कि मैं इस तरह से काम करूँगा मेरा महल बन जाएगा, तो जैसा सोचा वैसे ही काम करेगा तभी बनेगा। इट मीन्स एडवाइस इज ईजी बट टू डू इज हार्ड। It is the good divine that follows his own instructions. She says the person will be very divine, बहुत ही गॉडली पर्सन होगा वो, बहुत ही डिवाइन होगा, यानी बिल्कुल भगवान के समान, जो खुद की सलाह को ही फॉलो करे, खुद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। एंड देन पोर्शिया सेज आई कैन easier teach 20 what were good to be done। कहती है ऐसे तो मैं 20 लोगों को बता सकती हूँ कि क्या करना सही है क्या करना अच्छा है, मैं बहुत उपदेश दे सकती हूँ, लोगों को सिखा सकती हूँ कि क्या करना अच्छा है। देन टू बी देन बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ओन टीचिंग। लेकिन कहती है कि उन 20 आदमियों में से खुद मैं नहीं बनना चाहूँगी, यानी कि मैं उन 20 आदमियों से ये कहूँगी, 20 लोगों से ये कहूँगी कि ये करना अच्छा है ये लोग करो, लेकिन मैं खुद की एडवाइस को फॉलो नहीं कर पाऊँगी। अंडरस्टैंड। As you also say that learning is very good, we should work hard,
we should respect our parents and teachers. But how many students do follow the advice of their own? बहुत कौन, कितने स्टूडेंट होंगे जो खुद की एडवाइस को फॉलो करते होंगे? नॉट मच आई थिंक. Portia says advice is very easy but to do is hard. The brain may devise laws for the blood. The brain means wise people, wise men जो हैं वो लॉ को डिवाइस करते हैं, कानून बनाते हैं. फॉर द ब्लड, ब्लड मीन्स नॉर्मल पीपल. बट अ हॉट टेम्पर मीन्स यंग जनरेशन, एक्साइटेड पीपल लीव्स ओवर कोल्ड डिक्री. यानी ऐसे कोल्ड डिक्री मीन्स और जजमेंट, जजमेंट और लॉ, लीव्स ओवर यानी उसको छोड़ देते हैं. जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए लॉ बनाते हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है और जो एक्साइटेड पीपल हैं वो ऐसे लॉ को नहीं मानते हैं, वो जंप कर जाते हैं उस चीज़ को. सच अ हेयर इज मैडनेस द यूथ. और इसी तरह कहती है, जिस तरह जो हेयर है, खरगोश है, वो भी एक क्या है, एक ऐसा यूथ है और ऐसा पागलपन है जो ऐसी एडवाइजेस को नहीं मानता है, नहीं फॉलो करता है. इन शॉर्ट टर्म पोर्शिया वांट्स टू से दैट आई एम लाइक अ हेयर, आई एम इन अ मैडनेस ऑफ यूथ, दैट आई डोंट वांट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ माय फादर अकॉर्डिंग टू हर विल. कहते कि अपनी विल को मानना बहुत मुश्किल लग रहा है, अपने फादर की विल को फॉलो करना बहुत मुश्किल लग रहा है. To skip over the meshes of good counsel the cripple. And she says skip over the meshes. Meshes means traps, jal of good counsel the cripple. The cripple means advice, counsel also advice. तो कहती है कि जो अच्छी सलाह है वो एक जाल की तरह है, मेरे लिए एक जाल की तरह है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं और हम स्किप नहीं कर पाते हैं, उससे जंप नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उस जाल से अलग नहीं कर पाते हैं. यहाँ पर जाल क्या है? पोर्शिया के फादर की विल और उनकी एडवाइस. एडवाइस क्या थी? द पर्सन हुएवर चूजेज द राइट कैस्केट ही विल मैरी पोर्शिया. कोई सा भी इंसान राइट कैस्केट को चूज कर ले, चाहे वो घमंडी हो, चाहे वो एक हत्यारा हो, कुछ भी हो सकता है. ही मे बी, और द राइट कैस्केट मे बी चूजन बाई द डम्ब पीपल ऑल्सो. डम्ब लोग भी उसको, मतलब मूर्ख लोग भी उसको ओपन कर सकते हैं. तो क्या पोर्शिया एक मूर्ख इंसान से शादी करेगी? तो शी हेट्स दिस काउंसिल. बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी हस्बैंड. कहती है लेकिन ये जो रीजनिंग है, ये जो तर्क मैं दे रही हूँ, रीजन जो दे रही हूँ, इस फैशन में नहीं है. चूज मी हस्बैंड, फैशन मतलब इस रिलेशन में, इस रिगार्ड में, इस संबंध में नहीं है. मैं अपना हस्बैंड चूज नहीं कर सकती. ओ मी द वर्ड चूज. कहती है जो चूज वर्ड है ना, मेरे लिए तो बिल्कुल इसका कोई मतलब ही नहीं है. बिकॉज आई कैन नॉट चूज. चुनना, सेलेक्ट करना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए. आई में नीदर चूज whom आई वुड नॉर रिफ्यूज whom आई डिसलाइक. कहती है ना तो मैं चूज कर सकती हूँ जिसको मैं चाहूँगी, और ना रिफ्यूज कर सकती हूँ जिसको मैं डिसलाइक करूँगी. इट मीन्स if she wants to marry a person, she can't. If she wants to dislike a person who chooses the right casket, she cannot refuse. So is the will of her living daughter curbed by the will of her dead father. And now will and will, these are the two words. Here will means desire, ichha, and here the word will means will, means the document prepared by Portia's father.
तो शी सेज विल ऑफ अ लिविंग डॉटर, यानी एक जीती जागती डॉटर की इच्छा को कर्व कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है. यू नो द कर्व, व्हाट इज कर्व? इट इज द piece of metal in the house of a horse. घोड़े की लगाम में जो अंदर एक लोहे का पीस पड़ा हुआ होता है उसे कर्व बोलते हैं, जो उसको कंट्रोल करता है. तो कहती है कि एक जीती जागती लड़की की इच्छा को दबा दिया गया. किसकी वजह से? एक मरे हुए पिता की विल की वजह से, उनके एक सिर्फ कागज के टुकड़े की वजह से मेरी इच्छा को दबा दिया गया. एंड शी सेज इज इट नॉट हार्ड नरिसा that I cannot choose one nor refuse none. He says, पोर्शिया की ये हार्ड नहीं है क्या? ये बहुत ज़्यादती नहीं है मेरे ऊपर कि ना तो मैं चूज़ कर सकती हूँ और ना मैं रिफ्यूज़ कर सकती हूँ. यानी अपनी पसंद के इंसान को चूज़ नहीं कर सकती और अपने नापसंद के इंसान को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती. कितनी मुश्किल बात है. When Portia says all these things, Nerissa advises again. Portia जब ये सारी बातें कहती है, अपने फादर को कोसती है, तो नेरिसा फिर उसे एडवाइस करती है और बताती कि आपके फादर ने ऐसा क्यों किया. She says, your father was ever virtuous and holy men at their death have good inspirations. She says, your father was a very good person and he was a very holy man, and at his death he had good inspirations. कहती कि उनकी मौत के समय उन्हें बहुत अच्छी इंस्पिरेशन आई होगी, जिस वजह से उन्होंने इस विल को प्रिपेयर किया. Therefore, the lottery that he had devised in these three chests of gold, silver, and lead. She says, because of that inspiration he had devised means prepared or designed the lottery of the caskets, gold, silver, and lead. Whereof who chooses his meaning chooses you. कहती है कि जो कोई भी चूज करेगा तो मीनिंग के अकॉर्डिंग चूज करेगा. जो उस कैस्केट के मीनिंग को समझ पाएगा, अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएगा, वही इंसान सही कैस्केट को चूज करेगा. Will no doubt never be chosen by any rightly, but one who shall rightly love. She says, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो कैस्केट है वो कभी भी चूज नहीं किया जाएगा किसी से सही सही तरीके से. यानी कोई भी सही तरीके से उस कैस्केट को चूज नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक इंसान चूज कर सकता है जो तुम्हें सही मायने में प्यार करता होगा. सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी रिचनेस, प्रॉपर्टी की वजह से तुम्हें प्यार नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हें प्यार करेगा. वही इंसान उस कैस्केट को चूज कर पाएगा. बट व्हाट warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? अब वो कहती है कि चलो उसको जाने दो, अब ये बताओ जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, warmth is there in your affection, यानी तुम्हारे क्या ख्याल है इन लोगों के बारे में. जितने भी प्रिंसली सूटर्स यहाँ पर पहले से ही आ चुके हैं उसको जीतने के लिए, कैस्केट्स को सिलेक्ट करने के लिए. सो मैनी सूटर्स हैव रीच्ड बेलमोंट टू ट्राई दियर लक एट द लॉटरी ऑफ द कैस्केट. बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं. तो नरिसा पूछती है कि इनके बारे में बताइए, क्या विचार हैं आपके. पोर्शिया सेज, आई प्रे दी overname them, and as thou namest them I will describe them. Portia says, just name them, call their names, and I will tell the quality, I will describe the quality of each of these suitors. कहती है बस इनका नाम बताओ तुम, और नाम लेते ही मैं इनकी क्वालिटी बता दूंगा, बता दूंगी कौन कैसा है. एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन. कहती है मेरे डिस्क्रिप्शन के बाद तुम
मेरी राय जानो ना कि मेरी राय क्या है इन लोगों के बारे में, क्या ख्याल है मेरे इन लोगों के बारे में. So Nerissa names the first suitor and Nerissa says first there is the Neapolitan prince. कहती है कि नेपोलिटन प्रिंस आया है, उसके बारे में क्या ख्याल है. एंड पोर्शिया से यस, मीन्स यस, दैट्स अ कोल्ड इंडीड. कहती है वो तो बिल्कुल कोल्ड है, एक बछेरा है, यानी घोड़े का बच्चा है बिल्कुल. फॉर ही डथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, क्योंकि वो अपनी घोड़े की बातें करने के अलावा कुछ करता ही नहीं है. एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स. एंड ही मेक्स हिज ओन appropriation and he does appreciation of his own. वो खुद अपनी तारीफें करता रहता है, डींगे मारता रहता है कि ओन पार्ट्स, यानी वो इतना काबिल है अपने आप में. he can shoe himself. क्या कहता है, शू मीन्स हॉर्स शू होता है. हॉर्स शू क्या होता है, जो नाल होती है घोड़े के पैरों में लोहे की लगी हुई. तो कहते हैं इतनी तारीफें मारता है और ये कहता है कि घोड़े की नाल तो मैं अपने आप बना सकता हूँ. I am much afeared, my lady. His mother played false with a smith. पोर्शिया कहती है जरूर किसी लोहार की छाई पड़ी होगी उसकी माँ के ऊपर, जिसकी वजह से वो नाल बनाना जानता है. बट स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक. आई थिंक you have up to there. And Narissa says then there is the County Palatine. And Portia says he doth nothing but frown. क्या कहती है, वो तो कुछ करता ही नहीं, फ्रॉन करता रहता है, अपनी भौएं टेढ़ी मेढ़ी करता रहता है हमेशा. एज हु शुड से, ऐसा लगता है वो कहता हो, क्या कहता हो, एंड यू विल नॉट हैव मी चूज. क्या कहता है कि तुम्हें तो मुझे चूज करना ही नहीं चाहिए. वो क्या कहेगा, चूज करना ही नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना काबिल हूँ कि शादी कर सकता हूँ. एंड शी सेज ही हियर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट. मैरी टेल्स को सुनते हुए उसे मुस्कान नहीं आती है, हंसने वाली कहानियों को सुनते हुए उसे मुस्कान नहीं आती है. आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. And she says, I fear, I'm afraid that he will prove the weeping philosopher, कि वो एक फिलोसोफर बनेगा रोने वाला, सैडनेस होगी उसके माइंड में. when he, यानी जैसे जैसे बूढ़ा होगा तब तक वो एक वीपिंग फिलोसोफर बनता जाएगा. बिकॉज ही इज़ सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ, क्योंकि अपनी यूथ में, अपनी जवानी में उसके अंदर इतनी सैडनेस भरी हुई है, तो इसकी ओल्ड एज में क्या होगा. I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these. And Portia says, I will be married to any dead person than to these persons. कहती है कि इन सभी लोगों से शादी करने के बजाय मैं एक मरे हुए इंसानी खोपड़ी से शादी करना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे किसी इंसान से शादी करना नहीं चाहूंगी. God defend me from these two. And she says, इन दोनों से तो भगवान मुझे बचाए, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी. So students, today's video is up to here. Thanks for watching and subscribe the channel. Thanks, have a nice day.